Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the common mistakes in bank branch audit. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So common mistake in bank branch audit. We had recorded lots of videos in bank branch audit, and after that I have received many messages, many calls, but same mistake, same question repeating. Please check it very carefully. आप उसको डिटेल में चेक करिए सारे वीडियोस को. And today itself again I am repeating all this, all उसका एक summarized way में which mistakes we are doing during bank branch audit. So before that, one disclaimer: all these are my personal views and can't be construed the views of the ICI, CA Sansaar, or any other person or any other authority. And also, don't take it like the legal advice or the professional advice, legal opinion or the professional opinion. And the purpose of this video is to spread knowledge, information, and awareness, and shall not be treated as solicitation in any purpose or any manner or for any other purpose whatsoever. Please also refer ICI guidance note, RBI master circular, RBI master directions, and then RBI circulars and the bank policy. And the mistakes, common mistakes in bank branch audit, I already told you, detailed में video. You can check it from the CA Sansaar YouTube channel. Again I am repeating, but detail में discuss नहीं करेंगे. I will just let you know कि this mistake you can do. अगर नहीं की तो बहुत अच्छी बात है. And remember one more thing. अभी भी काफी फोन आ रहे हैं कि मेंबर्स आर सेइंग कि सर एक बैंक मैनेजर ने सर्कुलर दिखाया है या दिस एनपीए वी कांट डू या वी कांट डू एनी एनपीए, इसके ऊपर ये है. तो वन थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, नो बैंक हैव द अथॉरिटी, कोई भी बैंक मैनेजर तो बहुत दूर की बात है, विच आर अगेंस्ट द आरबीआई सर्कुलर. अपने बिहाफ पे कोई भी बैंक पॉलिसी नहीं बना सकता अनलेस अनटिल्स it's allowed by the RBI. तो you have to see the RBI circular. As per RBI circular क्या है, you have to do, and अगर उसमें NPA then you must do it. Show the power of audit and tell the finance ministry, RBI, why audit is necessary for the bank branch audit. We are the partners in national building, and yes, कोई गलत है तो yes we can do it. NP है तो you must do it. So कौन कौन सी common mistakes हैं? It's related to appointment, then verification, key security control, during bank balance sheet review, profit and loss account review, advances review, MOC, LAFAR, certification, UDIN, documentation. So let's discuss one by one quickly because all this we have already discussed in detail. सो रिलेटेड टू मिस्टेक्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हैं रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन एनओसी टू द प्रीवियस ऑडिटर. सो एवरी ईयर, इट्स नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, आइदर इट्स द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और द फोर्थ ईयर, whenever you receive the appointment letter from the bank, कोई बैंक आपको ब्रांच ऑडिट अलॉट हो रहा है, तो immediately you have to send the communication to the previous auditor. Here the word is communication. Nowhere it's written NOC. NOC kahin nahi hai. Again and again I'm saying you have to communicate, and you can also communicate through the email. And this is the necessary requirement. आपको भेजना ही भेजना है. Some people are saying कि बैंक ऑडिट में कोई रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, but yes you have to send it out. Whether fees is that's the secondary matter कि fees is pending or not. But yes, it's our duty to communicate to the previous auditors. Then next is the engagement letter, and this communication to the different branch, different auditors. उनसे अगर आपके पास डिटेल नहीं है, you can ask the branch itself. आप उनसे email ID लेके you must, and this communication is before signing.
before accepting, not before signing the audit report, before accepting. एंड देन एंगेजमेंट लेटर, कि आपको एंगेजमेंट लेटर भी इशू करना है एज पर ऐसे इशूड बाय द आईसीआई टू द ईच ब्रांच. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लोजिंग सर्कुलर, यहाँ भी हम मिस्टेक्स करते हैं. वी ओनली चेक इट कौन सी ब्रांच अलॉटेड हुई है, दैट्स इट. बट बैंक सेंड अस द क्लोजिंग सर्कुलर इटसेल्फ. अदरवाइज यू शुड आस्क फ्रॉम द बैंक मैनेजर. उसमें भी आपको काफी सारे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे. हाउ टू कंप्लीट द ऑडिट, हाउ टू क्लोज द, हाउ बैंक आर closing their accounts. तो काफी details you will get it out. Then audit planning and audit program. Here also we do lots of mistake. हम लोग कोई प्लान नहीं करते, कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, तो फिर the same thing somebody asked me कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए कि ऑडिट कंप्लीट हो जाए टाइमली, कि हम उसको स्टार्ट तो कर देते हैं बट कंसोलिडेट नहीं हो पाता. दैट्स ओनली पॉसिबल when we have a good audit plan and the audit program. इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो है that you can discuss. You can check it out from the CA Sansaar YouTube channel. Then audit documentation. I already told you, now from April 20 auditors का भी audit हो रहा है. Peer review of each chartered accountant into different phase. So if you did the bank audit, then also audit will be there. But yes, also to save yourself, यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्स, जो आपके वर्किंग पेपर्स हैं, तो उसके ऊपर भी आप डिटेल में चेक कर सकते हैं. हम डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, कहीं हमारा लफार है, कहीं हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, तो दैट्स आल्सो शुड बी इनटू वन फाइल. उसके ऊपर भी हम भी डिस्कस करते हैं. देन मिस्टेक रिलेटेड टू वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन रिलेटेड, एक तो सबसे पहले आप जब भी ऑडिट स्टार्ट करो, यू मस्ट आस्क फॉर द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट. जो सेट है पूरा आपके पूरे, जो ऑडिटर ने प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट लाइक द आपके पास उनकी लफार ऑडिट रिपोर्ट, कोई एमओसी या सर्टिफिकेट्स, आस्क फॉर कंप्लीट सेट. देन कंकरेंट ऑडिट, जो कंकरेंट ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर है, इट्स एप्लीकेबल, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बाय द आरबीआई, रिस्क फोकस इंटरनल रिपोर्ट. Go through that report and check the discrepancy, audit observation, and whether it's verified by the branch manager, उसको रिजोल्व हो गए हैं या नहीं हुए. तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स यू विल गेट फ्रॉम द कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट. आपको क्योंकि कंकरेंट ऑडिट आर ऑन द मंथली बेसिस, उसी के बेसिस पे यू कैन चेक इट आउट कि हाँ मेरे को किस किस अकाउंट को चेक करना है, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आर देयर. एंड देन अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय द बैंक एंड अकाउंटिंग पॉलिसी. ड्यूरिंग अभी हमारा सीएससी के साथ इंटरेक्शन था, देन समबडी वाज आस्किंग सर आप अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं भेजते. अरे आई एम सेइंग, अगर आप कुछ भी नहीं मिलता आपको, यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द रिलेटेड बैंक. आप उसकी बैंक की वेबसाइट पे जाके यू कैन डाउनलोड द एनुअल अकाउंट्स. अगर वहां भी नहीं है, यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द एनएससी, क्योंकि ऑल आर द लिस्टेड कंपनी, जितने भी बैंक्स हैं उसके, बिकॉज इट्स द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, उनको अकाउंट्स को अपलोड करना है. वहां से आप अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट डाउनलोड कर सकते हो. एंड देन यू कैन चेक इट आउट, देयर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द नोट्स टू अकाउंट्स. नो नीड फॉर एनीथिंग. अदरवाइज आप बैंक मैनेजर से भी रिक्वेस्ट करोगे, ही विल आल्सो सेंड इट आउट. देन क्लोजिंग सर्कुलर, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. देन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. आजकल क्या हो रहा है, बस हम सीबीएस के थ्रू चेक कर लेते हैं कि एक ऑडिट हो गया, बट यस, असली ऑडिट तो आपका डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही होता है. यू मस्ट चेक इट आउट द डॉक्यूमेंट्स. आइदर वो आपके किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे है या कहाँ पे है, यू मस्ट गो देयर, एक दिन दो दिन, नोट डाउन ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू वांट टू चेक एंड चेक इट आउट. एंड सैंक्शन लेटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट हैव, उसको भी आप अपने पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसकी फोटोकॉपी लेके. देन स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस विद क्लासिफिकेशन एंड वेरियस फील्ड. This also very important regarding the classification along with various field duly filed such as security, sanction limit, date of sanction, renewal, outstanding balance, जो भी अकाउंट्स आप टेस्ट चेक बेसिस पर सकते हैं, पूरी डिटेल यू शुड हैव. अगर आपको एक्सेल में यू कैन डू इट, उसको आप फाइल लेके यू कैन कन्वर्ट इट टू द एक्सेल, देन इट्स वेरी गुड. Then management representation letter. Management representation letter is also very important. You have to save yourself. Lots of things are there which you can include into the management representation letter. And after that आपको उससे बैंक मैनेजर, जो ब्रांच का बैंक मैनेजर है, उससे आपको साइन करवाने हैं. And it should be into the part of your audit documentation. Then mistakes related to security control aspects.
तो रिलेटेड टू सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स में क्या है, नॉलेज ऑफ ऑल सराउंडिंग सॉफ्टवेयर, जो भी सराउंडिंग सॉफ्टवेयर आपके सीबीएस, फर्स्ट तो आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, फिनेकल है या टीसीएस बैंक्स है या फ्लेक्स क्यूब्स है, उसकी सम इंपॉर्टेंस कमाना। आई एम नॉट सेइंग यू शुड हैव द एक्सपर्ट नॉलेज, बट यस यू शुड हैव द वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑल सराउंडिंग सॉफ्टवेयर जो विच आर रिलेटेड टू सीबीएस है, उसकी भी यू मस्ट हैव नॉलेज। एंड देन हाउ टू गेट द ऑथराइज एक्यूरेट एंड कंप्लीट डाटा। Manager will be always be busy, but if you have the knowledge then you can do it yourself also. Then on test basis you check some charges, on manual basis, then exception report। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स को भी समटाइम वी डू द मिस्टेक, उसको अवॉइड कर सकते हैं। यू मस्ट आस्क फॉर द एक्सेप्शन रिपोर्ट एंड आल्सो इट शुड बी पार्ट ऑफ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंड जो आप चेक कर रहे हो, इवन इसके ऊपर भी आप वीडियो में चेक कर सकते हो, 2 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर ऑफ द मंथ, जिस मंथ का आप फॉर एग्जांपल आप 31st मंथ की एक्सेप्शन रिपोर्ट, तो 2-3 दिन पहले की और 2-3 दिन बाद की एक्सेप्शन रिपोर्ट यू मस्ट चेक इट। दिस इज फॉर द ऑडिटर्स। उसके अंदर आपको डिटेल आएगी दैट यू हैव टू सी कौन कौन सी एक्सेप्शन रिपोर्ट यू हैव टू चेक। देन अकाउंट मास्टर भी वी हैव टू मेंशन इनटू द सीबीएस कि आपको अकाउंट मास्टर भी चेक करने हैं। उसमें आपको चेक करना है क्या क्या डिटेल मेंशन है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कब मॉडिफाइड हुआ, या उनकी इंस्टॉलमेंट्स की क्या डेट है, इंस्टॉलमेंट अगर कोई चेंज हो रही है आफ्टर फ्यू इयर्स, उसकी क्या चेंजेस है, that all you can check it from the account master. So these are some mistake you people we people do at the time security control except. Then at the time of balance sheet review, mistakes at the related to balance sheet review. So some macro level audit check we have to do for the balance sheet items. For example, I already told you, if there are some debit balance into the saving bank or the current account, then that should be the part of advances. उसको net off नहीं करना आपको उसके saving account या current account, that should be the part of advances. That's also a biggest mistake. Then interest जो accrued है, इंटरेस्ट एक्रूड है, उसको आप टेस्ट चेक बेसिस पे मैनुअली चेक कर सकते हो वेदर इट्स करेक्टली कैलकुलेटेड। एंड देन इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू शुड बी क्लासिफाइड एज द अदर लायबिलिटीज। देन एक और मिस्टेक्स जो हम कई बार अवॉइड कर देते हैं, बैलेंस है किसी और बैंक्स के साथ या आरबीआई के साथ, एचओ का बैलेंस चेक नहीं कर सकते, कई टाइम से चल रहा है, आप उसकी डिटेल चेक करिए, कोई पुरानी एंट्रीज चल रही है, व्हाट्स द रीजन। एंड अदर बैंक्स के साथ अगर कोई रिकंसिलेशन है या कोई सर्टिफिकेट्स है, दैट आल्सो यू कैन चेक। देन कैश वेरिफिकेशन पे भी हमें वी हैव टू गिव द सर्टिफिकेट, और हम दे देते हैं 31 मार्च का, चेक किया हमने 5 अप्रैल का, तो यू मस्ट हैव द कॉपी ऑफ द 5 अप्रैल या जिस डेट को भी आप ऑडिट कर रहे हो, एंड आल्सो चेक कि 31 मार्च और अप्रैल के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शंस है, उसको आप एक चेक कर सकते हो एक्सेल शीट में कि व्हाट वुड बी द बैलेंस एंड व्हाट्स द रियल बैलेंस है, तो the date of verification of cash balance. So that's also very important. Then some other mistakes related to the fixed assets. फिक्स एसेट्स की वेरिफिकेशन कई बार हम भूल जाते हैं। एंड ओपनिंग बैलेंस इज आल्सो कि अगर फिक्स एसेट रजिस्टर है या सम अदर सॉफ्टवेयर है फिक्स एसेट्स का, उसमें क्या ओपनिंग है एंड व्हाट्स द ओपनिंग इन द ब्रांच अकाउंट इटसेल्फ। एंड आल्सो जो न्यू परचेजेस है उसकी फिजिकल वेरीफाई पता चले कि आपने एसेट्स तो परचेज कर ली ब्रांच अकाउंट में। इन वन केसेस वी हैव सीन टीवी सोफा लगा हुआ है मैनेजर के घर पे, तो दैट्स आल्सो यू हैव टू डू द फिजिकल वेरिफिकेशन। देन सन्ड्री एसेट्स एंड सस्पेंस अकाउंट, उसको भी समटाइम वी फॉरगेट। सस्पेंस अकाउंट किस बात के है, या सन्ड्री एसेट्स में आउटस्टैंडिंग कब से चले आ रहे हैं, व्हाट आर द रीजन, क्या अप्रूवल है या डेबिट एंट्रीज का या क्रेडिट एंट्रीज का, किसने अप्रूव किया है, कितने टाइम से चल रहा है। एंड देन बीजी बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एसबीएलसी, एलओयू, उसके ऊपर जब हमें चेक करना है, दैट्स आल्सो वी हैव टू चेक। फॉर एग्जांपल अगर कोई एलसी आपकी डिवॉल्व है, तो इट शुड बी डेबिटेड इन द करंट अकाउंट, उसको आपने अलग से पार्क करा हुआ है, व्हाट्स द रीजन, वो अकाउंट सीधा आपका एनपी हो जाएगा। बीजी रिवर्सल, तो ऑल दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। एंड देन कंटीजेंट लायबिलिटी भी हम नहीं चेक कर सकते कि कैन यू क्लेम अगेंस्ट द बैंक, तो वो काफी सारी चीजें हैं दैट यू हैव टू चेक ड्यूरिंग द बैलेंस शीट रिव्यू। देन नेक्स्ट इज द ड्यूरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिव्यू, जो मिस्टेक्स है, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, कंपेयर जितने भी आपकी एक्सपेंसेस या इनकम्स हैं उसका लास्ट ईयर से कंपेयर करो, एंड देन चेक व्हाट्स द वेरिएंस। इफ द नॉर्मल वेरिएंस है देन इट्स ओके, बट पता चले कोई कभी लास्ट ईयर कोई एक्सपेंसेस था 10 लाख रुपीस, नाउ इट्स द 1 करोड़ रुपीस, देन ह्यूज एक्सपेंसेस, कितना वेरिएशन है, देन आस्क फॉर द रीजन। ऑल्सो यू कैन डू द रेशियो एनालिसिस जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। देन
verification of the nature of each account in its classification, disclosure in the profit and loss account, then जो interest है आपका interest, वह कुछ इंटरेस्ट जो आपके बेस रेट या एमसीएलआर रेट से रिलेटेड है तो वो कब कब चेंज है, इट्स ऑन द सेंट्रल लेवल, उसका क्या इफेक्ट हुआ है, एंड देन फैसिलिटी वाइज जो आपका इंटरेस्ट है जो हम चार्ज करते हैं फॉर एग्जांपल कैश क्रेडिट अकाउंट्स में, तो कैश क्रेडिट अकाउंट में जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इफ दिस इज रिलेटेड टू बीआर और द एमसीएलआर प्लस स्प्रेड, तो उस केसेस में हमने ये चेक करना है कि वेदर इट्स चेंज एट द सेंट्रल डाटा या फिर मास्टर डाटा में चेंज हुए। यू कैन चेक देयर हिस्ट्री, वो आपको चेक करनी है कैश क्रेडिट ऑन द टेस्ट चेक बेसिस पे। एंड इन केस ऑफ हाउसिंग लोन, ये मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो हम कई बार अनइंटेंशनली भी कर देते हैं। तो इफ इन हाउसिंग इंटरेस्ट अगर कोई उसका चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट है तो उसका ईएमआई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ईएमआई की उसकी कैसे चेंज कराए इनटू द मास्टर डाटा, दैट आल्सो यू हैव टू चेक। देन एग्रीकल्चर हाउसिंग लोन का ट्वाइस आ गया, एंड एग्रीकल्चर लोन के केसेस में आपको चेक करना है जो एग्रीकल्चर इंटरेस्ट है ऑन बैंक पॉलिसी क्या है फॉर द शॉर्ट टर्म क्रोप लोन, लॉन्ग टर्म क्रोप लोन, तो आपको मंथ ईयरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस क्या है, उसका रिपेमेंट टाइम क्या है, दैट ऑल यू हैव टू चेक। देन नेक्स्ट इज लोन अंडर लोन फॉर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, कि कोई आपका लोन है फॉर द प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, उस केस में आल्सो यू हैव टू चेक द बैंक पॉलिसी कि जो इंटरेस्ट चार्ज करना है एक्रूअल बेसिस पे चार्ज करना है या कैश बेसिस पे। कुछ बैंक एक्रूअल बेसिस पे चार्ज करते हैं, कुछ कैश बेसिस पे चार्ज करते हैं, बट नॉर्मली if the assets is the standard assets then accrual basis, and then if the asset is substandard then cash basis। then next is जो आपको मिस्टेक्स करते हैं फंडेड इंटरेस्टेड टर्म लोन, फंडेड इंटरेस्टेड टर्म लोन में जो आपको एनपीए है तो उस केस में आपको देखना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एफडी इफ रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम शुड बी फुल्ली प्रोवाइडेड एंड इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल आल्सो इंश्योर दैट अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट जितना भी है रिवर्स एट द ईयर एंड। so these are related to the profit and loss review mistakes। now another one is the mistake related to advances। तो फर्स्ट थिंग रिमेंबर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 सर्कुलर इंपॉर्टेंट सर्कुलर ड्यूरिंग 21-22 रिलेटेड टू आईरेक नॉर्म्स। 21-22 में 3 थे रिलेटेड टू आईरेक नॉर्म्स। फर्स्ट वाज अक्टूबर 21, देन नवंबर 21, देन फेब 22। तो प्लीज गो थ्रू दैट सर्कुलर, वो सर्कुलर आप चेक करिए। अगेन आई एम टेलिंग यू उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, फर्स्ट थिंग जो था रिलेटेड टू द ड्यू डेट रीपेमेंट, जो आरबीआई सेड ऑन ऑल द आपके जो उसके लोन्स के जितने भी पेपर्स हैं आपके एग्रीमेंट्स हैं, दिस ऑल डिटेल शुड बी देयर, ब्लैंक्स नहीं होनी चाहिए। उसमें टाइम भी दिया था अप टू 31 दिसंबर आपको कंप्लीट कर देना है। देन नेक्स्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू जो क्लैरिफिकेशन आई ऑन 12 नवंबर 2021 को आरबीआई को रिलेटेड टू एनपीए एसपीए अकाउंट, यू हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑफ डे एंड प्रोसेस। जब आपका बैंक रन करते हैं डे एंड प्रोसेस को, उसी के बेसिस पे आपको एनपीए या एसएमए क्लासिफाई करना है। एंड आल्सो यू हैव टू आस्क कि वेदर दे आर डूइंग ऑन द डेली बेसिस। and SMA और NPA it's check on the calendar basis कि आपकी कैलेंडर डेट मंथ एंड के बेसिस पे नहीं चेक करना। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट ट्रेल यू कैन आस्क फ्रॉम द बैंक मैनेजर, उनसे आप लेटर ले सकते हो, इवन यू कैन राइट डिस्क्लेमर इनटू द योर ऑडिट रिपोर्ट। देन नेक्स्ट वाज द डेट ऑफ एनपीए। डेट ऑफ एनपीए इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम वी डू द मिस्टेक्स कि हम करेक्ट डेट नहीं चेक कर पा रहे। इवन आरबीआई सेड सो मेनी टाइम्स कि 31 मार्च को ही क्यों एनपीए होते हैं, बीच में भी होता है, क्योंकि उससे पहले का सारा इंटरेस्ट आपको अनरियलाइज्ड जो आपका इंटरेस्ट है आपको रिवर्स करना है। तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पूरा डिटेल हमने डिस्कशन किया हुआ है। देन द एनपीए जो है वो भी हम मिस्टेक करते हैं, हम कस्ट आईडी से चेक नहीं करते। एनपीए इज द बोरोअर वाइज, नोट द फैसिलिटी वाइज। एक अकाउंट एनपीए, ऑल अकाउंट्स एनपीए, एक्सेप्शंस आर देयर, वो भी हमने डिटेल में चेक करा। तो आप कस्ट आईडी बेसिस पे हो सकता है कस्ट आईडी जो कस्टमर आईडी है वो भी सीआईएफ आपकी 1 से 2 हो, उसको भी आप सेम नेम से आफ्टर दैट पैन नंबर आधार से चेक कर सकते हो। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, नेटवर्थ ऑफ द बोरोअर ग्रांटर, उसको भी अगर कोई अकाउंट एनपीए तो छोड़ो, अगर उसका चाहे 100 करोड़ की सिक्योरिटी है या उसके अकाउंट में अकाउंट एनपीए मींस द अकाउंट एनपीए। एंड देन
सम अपग्रेशन, जो अपग्रेशन के ऊपर अभी एनपीए अकाउंट्स है, दैट्स आल्सो यू हैव टू सी। कुछ ऐसी मिस्टेक है कि अपग्रेशन मींस अभी जो बैंक्स का जो क्लैरिफिकेशन आई थी, अपग्रेशन तभी करोगे जब ऑल अकाउंट्स एनपीए के रिलेटेड अगर एक की कोई और फैसिलिटी है, सब अकाउंट्स के जितने ड्यूज है अप टू दैट डेट, दैट शुड बी रिवर्स रिसीव्ड, ओनली देन अकाउंट शुड बी अपग्रेडेड। देन नेक्स्ट वाज द रिवर्सल ऑफ ऑल इनकम। जब अगर कोई अकाउंट एनपी हो गया तो जितनी भी अनरियलाइज्ड इनकम है दैट शुड बी रिवर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट गारंटी। देन स्टॉक स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टॉक स्टेटमेंट चेक तो करते हैं, बट मैनेजर कह देते सर आ जाएगी, इवन सम टाइम मास्टर डाटा में फीड होता है, रियल में नहीं होती। एंड RBI also clarified in case of only for large borrower के केसेस में 3 months ओल्ड के बेसिस पे डीपी कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस 90 डेज, तो ऑलमोस्ट 180 डेज से ओल्ड अगर स्टॉक स्टेटमेंट है तो अकाउंट्स को इमीडिएटली एनपी कर दो। देन पेंडिंग रिन्यूअल, अगर 180 डेज के अंदर रिन्यू नहीं हुआ देन आल्सो एनपी अकाउंट। देन एग्रीकल्चर एडवांस, अभी काफी केस आ रहे हैं किसान मैनेजर तो कहते हैं एग्रीकल्चर एडवांस तो एनपी नहीं होते। नो, आपको चेक करना है 2 crop सीजन ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट है 2 crop सीजन इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन एंड 1 crop सीजन इन केस ऑफ लॉन्ग क्रॉप लोन, तो वो भी आपका एनपी होगा अकाउंट, ऐसा नहीं है अकाउंट एनपी नहीं होते। देन इनहेरेंट वीकनेस आपको चेक करनी है अकाउंट्स में ऑन टेस्ट चेक बेसिस पे कि वेदर अकाउंट वर्किंग में भी है या इनहेरेंट वीकनेस, चेक बाउंस हो रहे हैं, लास्ट में सिर्फ पेमेंट्स आ रही है, इंटरेस्ट की पेमेंट आ रही है। देन इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कि अगर कोई एसेट्स है उसकी वैल्यू मोर देन 50% डाउन है, सीधा आपका डाउटफुल एसेट्स में, 10% तक आ गया, 90% से ज्यादा डाउन है तो सीधा आपकी लॉस एसेट्स में। देन आपका जो मोरिटोरियम का आप ये दिस आई एम टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट मिस्टेक वी पीपल डिड। देन मोरिटोरियम का इंटरेस्ट है, जो अगर मोरिटोरियम के पीरियड में कोई इंटरेस्ट है उसके बाद आपका अकाउंट एनपी हो गया तो उसको रिवर्सल नहीं करना। देन आल्सो जो आपकी क्लासिफिकेशन की लिस्ट है लाइक स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल एंड द लॉस एसेट्स, कंपेयर बोथ, कि कोई भी एक सब स्टैंडर्ड 1 ईयर से ज्यादा दूसरे में नहीं रहेगी क्योंकि उसकी डाउन आ जाएगी, तो अगर उसमें है देन देयर आर सम इशू, तो दैट आल्सो यू शुड चेक इट आउट। देन ऑटोमेशन, आरबीआई ने सर्कुलर इश्यू किया था कि ऑल अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड थ्रू द सीबीएस इटसेल्फ, एसएमए एनपीए सब कुछ सीबीएस के थ्रू चेक करना है, तो प्लीज चेक एंड रिमार्क्स, उसको लफार में आपको रिमार्क्स देने हैं कि ऑटोमेशन हो रही है या नहीं हो रही। एंड देन अकाउंट रेगुलराइज, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि बैलेंस शीट के टाइम 31 मार्च को रेगुलराइज हो गए तो व्हाट्स द रीजन, एंड इवन आफ्टर दैट मैनेजर कहता है सर इसके लो पैसे आ गए, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप 31 मार्च की बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, उस अकाउंट को एनपीए ही होना है, 31 मार्च को चेक करना है अमाउंट रिसीव्ड और नोट, पहले कहाँ थे इतने टाइम, क्यों नहीं आया पहले, अभी क्यों पेमेंट आ रही है, तो दैट यू हैव टू सी। एंड देन इनहेरेंट वीकनेस, ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। एंड देन mistake related to advances review में one circular was there on this 3 circular was there and already again ये वापस आ रहा है शायद, हाँ this is हाँ mistake related to MOC ये the mistake related to MOC, that was mistake related to advances review। अब MOC के रिलेटेड में, MOC आई टोल्ड यू, MOC का नाम सुनते ही पूरी ब्रांच में अर्थक्वेक आ जाएगा, everybody will surrounding you, even AGM will be there, DGM will there, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। Again I am saying if account is NPA तो you must go through the MOC, और ये नहीं है कि आप लफार में लिख दोगे एडवर्स कमेंट और एमओसी नहीं लिखोगे देन इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग फॉर योरसेल्फ, आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड आल्सो एमओसी इज द पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, इवन इफ देयर आर नो इश्यू देन आल्सो नील एमओसी इशू करना है आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ। and जो भी MOC there should be supported evidence, there should be some reasons किस वजह से आप किस बिहाफ पे आप MOC इशू कर रहे हो, और NPA है then again I am saying must issue, वो नहीं चलेगा इन फ्यू केसेस स्टॉक स्टेटमेंट आप नो, ऐसा नहीं है, अगर आपका है गिव द डिटेल, गिव इशू द MOC। एंड देन मिस्टेक्स रिलेटेड टू लफार, लफार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लफार को ऑडिट प्लान का पार्ट नहीं बनाया देन वेरी बिग इशू विल बी देयर।
इट्स नॉट लाइक अर्लियर कि हम लास्ट में लफार यस नो नॉट एप्लीकेबल लिख देते थे। नो, लफार के जो क्वेश्चनर है, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गो थ्रू केयरफुली at least twice or thrice, and don't use yes no not applicable. Give your comments in details, and also इसको साइमल्टेनियसली कि आप ऑडिट रिपोर्ट भी कर रहे हो, लफार भी कर रहे हो, साथ के साथ बिकॉज लोड्स ऑफ थिंग्स आर देयर विच वी हैव टू मेंशन इनटू द लफार। इवन जो भी मैं आपको एमओसी के बारे में बता रहा था, आप सिर्फ लफार में नहीं मेंशन कर सकते इन फ्यू केसेस। अरे इन फ्यू केसेस नहीं, आपको जो केस है जहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई, यू शुड मेंशन द डिटेल। या फिर फॉर एग्जांपल डीपी कैलकुलेशन, पूरी डिटेल बतानी है कि किस किस केसेस में डीपी कैलकुलेशन रॉन्गली कैलकुलेट हुई। यू हैव टू मेंशन दैट, एंड फॉर दैट आल्सो यू मस्ट हैव द एमओसी, यू मस्ट हैव द एडवर्स रिपोर्ट। वो आपको देखना है केयरफुली। दैट्स आल्सो द बिगेस्ट मिस्टेक कि लफार में मेंशन कर दिया बट उसके कोरस्पॉन्डिंग नो, दैट्स आल्सो द बिग इशू। देन मिस्टेक्स रिलेटेड टू सर्टिफिकेट्स, जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, आई टोल्ड यू सर्टिफिकेट्स आर वेरी डेंजरस। We are certifying 100% these are the true. This is not a report where we can say that on behalf of books and accounts produced before us and in our opinion. No, this is certified by this chartered accountant so and so. So we must have the supporting documents कि क्या चेक किया, आपको पूरे केयरफुली चेक करना है। फॉर एग्जांपल कैश सर्टिफिकेट दिया आपने, दे तो आप 31 मार्च कर रहे हो, फिजिकल वेरीफाई आपने अलग डेट को करा है, तो उसको आपने रिकनसाइल किया बीच में या नहीं किया। एंड देन कैपिटल एडिक्वेसी सर्टिफिकेट दे रहे हो, देन सर्टिफिकेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ घोष जलानी। तो घोष जलानी के जो पॉइंट्स हैं आपने वो चेक किए, वहां पे मे आई हेल्प यू का सर्टिफिकेट, मे आई हेल्प यू का डेस्क नहीं है, काउंटर नहीं है, एंड यू आर राइटिंग यस डेस्क इज देयर। चेक रिक्विजिशन स्लिप पे दे रहे हो या नहीं दे रहे, चेक चेक बुक वो लिख रहे हो यस, so that also you have to check, that's also a mistakes during the issuing of the certificates. Then UDIN, अभी अगेन कुछ लोगों के हो सकते हैं 1 or 2 branches completed and they are generating the UDIN, again issues are there. तो UDIN by the ICI is the per assignment per signatory. So in one branch, in each branch you have to issue 2 UDIN. One UDIN is for the tax audit and the second UDIN is for the bank audit report, जो आपकी इंडिपेंडेंट बैंक ऑडिट रिपोर्ट एमओसी वगैरह है उस, और लफार एंड सर्टिफिकेट, उन सब के लिए एक ही यूडीएन आपको जनरेट करना है। और टैक्स ऑडिट आजकल एचओ लेवल पे है, तो पर ब्रांच 1 यूडीएन इज देयर। बट इफ द डेट्स आर डिफरेंट, कि आपने सर्टिफिकेट पे कोई और डेट लिखी एंड रिपोर्ट्स पे कोई और रिपोर्ट डेट डिफरेंट लिखी है, तो डिफरेंट यूडीएन विल बी देयर, आपको अलग अलग यूडीएन जनरेट करना पड़ेगा डेट वाइज। एंड कुछ रिपोर्ट्स एक पार्टनर साइन कर रहा है, कुछ सर्टिफिकेट एक दूसरा पार्टनर साइन कर रहा है, तो आल्सो एज पर पार्टनर वाइज, क्योंकि पर असाइनमेंट पर सिग्नेचर। तो आल्सो try to don't do this kind of mistake during the UDIN. Then next is mistakes related to documentation. डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी यू हैव टू गो थ्रू, कि आपको ऐसा नहीं है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज ओनली फॉर द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनीज और द अदर। SA 230 itself it says no exemption for the bank audit itself. तो बैंक ऑडिट के केस में भी आपको SA 230 फॉलो करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मींस क्या है, यू मस्ट हैव द सैटिस्फैक्टरी एविडेंस that audit was planned and performed in accordance with the essays and applicable legal and regulatory requirement. तो जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो आप या तो आप पेपर वाइज या इलेक्ट्रॉनिक या अदर मीडिया कैसे भी रख सकते हो। मींस फाइल है तो एक ही फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स होने हैं, सो दैट इजीली रिट्रीव्ड व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। एंड ऑडिट डॉक्यूमेंट्स कितने टाइम के लिए रखने हैं, एटलीस्ट 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो दीज आर सम मिस्टेक्स which as the auditor we people do during bank branch audit. So this is all about today's. If you have any again further any clarification या any feedback, you can send it through the mail or you can message at the WhatsApp number. And one request to all of you, please आप अपना डिटेल तो बता दीजिए, जो मैसेज भेज रहा है सर दीज आर द क्वेश्चन, अरे आप बता तो दो आपका नाम क्या है, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फ्रॉम वेयर यू आर मैसेजिंग, एटलीस्ट पता तो हो कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है।
So thank you very much, and bye bye. We'll try to bring some more video if possible of the bank branch audit. Otherwise, I have covered lots of things. तो एक बार आप डिटेल में सारे वीडियो चेक कर लीजिए फ्रॉम द सीए संसार यूट्यूब चैनल. बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है इफ यू नीड सम क्लैरिफिकेशन यू कैन मैसेज इट, और अगर लगेगा तो डिटेल में विल डिस्कस थ्रू द वीडियो इटसेल्फ. सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.